Hello students, how are you all? Are you all fine? I hope you all are fine and safe at your home. So, do you know, in chapter number 4 in textbook we have already completed, right? And today we are going to solve exercises from litho of chapter number 4. And do you know what is the name of this chapter? चैप्टर नंबर 4 का नाम क्या है? लॉन्ग एंड शॉर्ट. तो इस चैप्टर में हमने क्या सीखा? अबाउट मीटर एंड सेंटीमीटर एंड किलोमीटर, राइट? सो द स्मॉलेस्ट यूनिट इज, सबसे स्मॉल कौन सा यूनिट होता है? सेंटीमीटर. फिर उससे बड़ा कौन होता है? मीटर. और सबसे बिग किलोमीटर होता है, राइट? जो सेंटीमीटर है वो स्मॉल थिंग्स मेजरमेंट के लिए हम यूज करते हैं, और जो मीटर है वो उससे बड़ी बिग थिंग्स मेजर करने के लिए यूज करते हैं, राइट? और किलोमीटर्स जो है वो बहुत ही बिग, मतलब कि उसको हम डिस्टेंस मेजरमेंट करने के लिए यूज करते हैं, जैसे वन प्लेस टू अनदर प्लेस, वन सिटी टू अनदर सिटी, राइट? सो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 1 फ्रॉम योर लिथो. सी इन दिस क्वेश्चन, पुट टिक फॉर द लॉन्गर एंड क्रॉस फॉर द शॉर्टर इन द गिवन बॉक्स फॉर द ऑब्जेक्ट्स बिलो. नाउ हियर टिक फॉर लॉन्गर मीन्स यहाँ पे जो थिंग्स होगी उसमें लॉन्ग होगा, तो उसमें आपको टिक करना है. एंड क्रॉस है तो क्या करना है? सॉरी, शॉर्ट है तो क्या करना है? क्रॉस करना है. अंडरस्टैंड? नाउ सी दिस कैंडल. ये कैंडल में से कौन सी कैंडल लॉन्गर है? दिस कैंडल इज लॉन्गर, सो यू हैव टू टिक. एंड दिस कैंडल इज शॉर्टर, सो पुट क्रॉस. नाउ दिस फ्रॉम दिस सीजर्स, दिस इज लॉन्ग, so what you have to do? You have to tick mark over there. And which is short? This one. So here you have to put cross. Now see the bus and car. So which is longer? Bus is longer or car is longer? Bus. So bus के पास आपको क्या करना है? Tick. And obviously car is short, so you have to put cross. Now see this vegetables. इन दोनों में से कौन सा long है? This one. So you have to put tick mark and here cross. Now see these things. Which is longer? This one is longer. So here you have to put tick and watch is shorter. So you have to put cross. Now this snake and caterpillar. So which is longer? कौन long होता है? Snake. So here you have to put tick. And caterpillar is smaller, so put cross, right? And the next क्या है? देखो यहाँ पे हॉकी है और बैट है, तो उन दोनों में से आपको कौन सा लॉन्ग लग रहा है? दिस टिक. So here you have to tick and here cross. Now short and pen. Obviously short is longer, so here you have to put tick, and pant is longer, so put tick over here, and short is shorter, so cross over there. Now see here what you have to do. Ladder and chair. तो ladder and chair में से कौन big मतलब कि long होता है? This one, right? So here you have to tick, and in this box you have to cross. Now one is scale and what we can say? Ruler, and this is eraser. So which is longer? Ruler. So here put tick mark and here cross. Now see here, these barrels are given. So this is longer and this is shorter. So tick here and cross over here. You have to put cross properly. Now these arrows, which one is longer? Black arrow is longer. मतलब कि this one is longer. So put tick, and this one is shorter. So put cross. Understand? यहाँ पे आपको क्या करना है? Cross. Now let's see question number 2. Now this is your question number 2, and let's read what you have to do in this question. Write the unit in which you will measure the length of the objects below. Now here some units are given, means some name of things are given, and units are given centimeter, meter और kilometer. तो यहाँ पे आपको क्या करना है? ये जो भी थिंग्स है ये सब आपने देखी ही होगी, राइट? तो उस हिसाब से आपको डिसाइड करना है कि ये थिंग स्मॉल है या बिग है, और हम उसको मेजर करने के लिए सेंटीमीटर, मीटर और किलोमीटर में से कौन सा यूनिट यूज करेंगे. जैसे कि मैच स्टिक. मैच स्टिक मीन्स वो जो आती है ना जिससे हम फायर करते हैं, तो मैच स्टिक्स कितनी होगी? इतनी छोटी सी, राइट? तो उसको हम सेंटीमीटर में मेजर करते हैं.
फिर कपबोर्ड, आपके घर पे जो कपबोर्ड होते हैं उसको किससे मेजर करेंगे हम? मीटर से, राइट। तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है? मीटर। देन रोलर, अब रोलर कौन सा रोलर है वो तो यहाँ पे मेंशन नहीं किया हुआ है, तो यहाँ पे जो हेयर में लगाने का रोलर आता है ना, स्मॉल स्मॉल, उसकी बात कर रहे हैं। तो ये रोलर है वो सेंटीमीटर में हम मेजर करेंगे, राइट। उसके बाद है कार, कार को किस में मेजर किया जाएगा? मीटर में। और स्ट्रीट लाइट पिलर, जो हमारे घर के बाहर मतलब सोसाइटीज में जो पिलर्स होते हैं वहां पे लाइट लगी होती है, स्ट्रीट लाइट पिलर, तो भी बहुत ही लंबे होते हैं, तो हम उसको क्या सेंटीमीटर में मेजर करेंगे? नो, दैट वी विल मेजर इन मीटर। सो हियर यू हैव टू राइट मीटर। देन स्पून, स्पून आप किस में मेजर करोगे? इन सेंटीमीटर, राइट, बिकॉज स्पून कभी 1 मीटर की तो होगी ही नहीं, तो हम खा ही नहीं सकेंगे। फिर लीफ, लीफ भी एकदम स्मॉल होता है, राइट, सो वी विल मेजर इट इन सेंटीमीटर। फिर बस, बस क्या सेंटीमीटर में होगा? अगर बस हम सेंटीमीटर में मेजर करेंगे तो हम बैठ भी नहीं पाएंगे, राइट, तो बस को भी हम किस में मेजर करेंगे? मीटर। नाउ डिस्टेंस टू द ग्राउंड फ्रॉम होम, मतलब कि ये डिस्टेंस आया, राइट, तो ये जो डिस्टेंस है वो हम किलोमीटर में मेजर करते हैं। सो हियर यू हैव टू राइट किलोमीटर। नाउ डिस्टेंस टू द बस स्टेशन फ्रॉम होम, तो डिस्टेंस टू द बस स्टेशन फ्रॉम होम, तो घर से बस स्टेशन का जो डिस्टेंस है उसको भी हम किस में मेजर करेंगे? किलोमीटर्स में। तो यहाँ पे दोनों ब्लैंक में आप क्या लिखोगे? किलोमीटर्स। नाउ सी हियर, यहाँ पे 1 2 3 4 ऐसे है, आपके लिखो में ऐसे स्टैंडिंग लाइन में है, बट यू कैन सी द नंबर। आप लोग नंबर तो देख ही रहे हो कि ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, तो आप उस हिसाब से आंसर्स लिखना, राइट, चाहे वो स्टैंडिंग लाइन में हो या स्लीपिंग लाइन में हो, क्या फर्क पड़ता है। नाउ नेक्स्ट वन, सी द नेक्स्ट, राइट द एप्रोप्रिएट यूनिट इन द एम्प्टी स्पेस। हियर ऑल्सो यू हैव टू राइट सेंटीमीटर, मीटर और किलोमीटर। यहाँ पर भी आपको वही लिखना है कि मीटर में है, सेंटीमीटर में है या किलोमीटर में है, बट नंबर इज गिवन। यहाँ पे क्या दिया हुआ है? नंबर दिया हुआ है। कितना? 17 है, तो ये जो बनाना है वो 17 सेंटीमीटर होगा, 17 मीटर का होगा या 17 किलोमीटर का होगा। दिस वे यू हैव टू राइट यूनिट। नाउ सी लेंथ ऑफ अ बनाना, बनाना की लेंथ कितनी हो सकती है? 17 सेंटीमीटर, क्योंकि वो तो एक स्केल जितना ही होता है, छोटा सा, राइट। अब सेकेंड वाला है लेंथ ऑफ अ सुगर कैन। सुगर कैन मतलब कि गन्ना, जो शेरड़ी, तो जो सुगर कैन होती है वो कितनी लंबी होती है, राइट, बट किलोमीटर जितनी भी नहीं होती है, तो उसको हम मीटर में मेजर करेंगे। सो लेंथ ऑफ अ सुगर कैन 2 मीटर, राइट, तो उसमें हम क्या लिखेंगे? मीटर। नाउ लेंथ ऑफ अ बुक 21। अब बुक की लेंथ को हम किसमें मेजर करेंगे? 21 मीटर। इट इज पॉसिबल? नॉट पॉसिबल। 21 सेंटीमीटर, राइट। नाउ लेंथ ऑफ अ कोकोनट ट्री, कोकोनट ट्री की लेंथ, अच्छा कोकोनट ट्री भी बहुत लॉन्ग होता है, बट किलोमीटर जितना भी लॉन्ग नहीं होता है और सेंटीमीटर जितना शॉर्ट नहीं होता है, इसलिए हम कोकोनट ट्री को भी मीटर में मेजर करेंगे। सो दैट इज 12 मीटर। नाउ फिफ्थ वन, लेंथ ऑफ अ पेंसिल बॉक्स। पेंसिल बॉक्स की जो लेंथ होती है, हम सब ने पेंसिल बॉक्स देखा ही है, वो भी छोटा होता है। सो लेंथ इज 22 सेंटीमीटर, राइट। अगर वो मीटर का होता तो हम बैग में भी नहीं लेके जा पाते, क्योंकि हमारा बैग थोड़ा ना 1 मीटर का लंबा होता है। नो। नाउ सिक्स्थ वन, हाइट ऑफ अ गर्ल। अब गर्ल की हाइट है वो क्या 2 सेंटीमीटर हो सकती है? तो इतनी ही होगी क्या? इतनी सी गर्ल थोड़ी होती है। और किलोमीटर मतलब तो बहुत लंबा, तो इतनी बड़ी भी 1 किलोमीटर जितनी भी गर्ल नहीं हो सकती है, राइट। तो ये आएगा 2 मीटर। गर्ल की जो हाइट है उसको हम 2 मीटर में मेजर करेंगे। अंडरस्टैंड? नाउ नेक्स्ट, डिस्टेंस फ्रॉम अहमदाबाद टू महसाना। नाउ सी दिस इज ऑल्सो डिस्टेंस, अहमदाबाद से महसाना का डिस्टेंस। Obviously we will measure it in kilometer, that's why here kilometer is written. Now 8, height of a tower. टावर की हाइट, अब आपने टावर तो देखे ही होंगे, बहुत ही बिग होते हैं, तो यहाँ पे 20 लिखा है, तो क्या 20 सेंटीमीटर हो सकता है, 20 मीटर या 20 किलोमीटर? तो 20 किलोमीटर जितना भी टावर नहीं होता है, इतना लंबा भी तो नहीं हो सकता है, और 20 सेंटीमीटर जितना भी तो टावर हो ही नहीं सकता। सो दिस इज 20 मीटर। Now distance from house to school
2। अब यहाँ पे भी डिस्टेंस आया हाउस टू स्कूल का, तो यहाँ पर भी हम क्या लिखेंगे, किलोमीटर। नाउ लेंथ ऑफ अ हैंड, अब आपकी हैंड का जो लेंथ है वो, तो क्या हैंड का लेंथ 60 सेंटीमीटर हो सकता है, 60 मीटर या 60 किलोमीटर। क्या इतना बड़ा किसी का हाथ होगा 60 मीटर तक का? तो बहुत ही अच्छी बात है ना। किसी को दूर से थप्पड़ लगानी है तो क्या करेंगे, हम दूर से ही उसको लगा देंगे, बट इट इज वेरी बैड मैनर, आपको ऐसा नहीं करना है। तो ये क्या हो जाएगा, 60 सेंटीमीटर, राइट। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन? Match in appropriate way, right? This is also we have completed in textbook. Do you remember? ऐसा एक matching textbook में भी आया था. So it is very easy, but you have to imagine first length of particular things, right? आपको decide करना पड़ेगा कि किसकी कौन सी things की length कितनी हो सकती है. जैसे कि 5 मीटर, 2 किलोमीटर, 10 सेंटीमीटर, 1 मीटर एंड 1 सेंटीमीटर. So 5 सेंटीमीटर, तो 5 मीटर किसकी लेंथ हो सकती है, अर्थवॉर्म की. अर्थवॉर्म क्या इतना बड़ा हो सकता है, नहीं. ये चाइल्ड हो सकता है, नो. फिंगर नेल, कभी फिंगर का नेल 5 मीटर तक का हो सकता है, नो. साड़ी, राइट, लेंथ ऑफ अ साड़ी वो 5 मीटर की हो सकती है. तो आपको ये फर्स्ट को ये साड़ी के साथ मैचिंग करना है. नाउ नंबर 2 क्या है, किलोमीटर्स, 2 किलोमीटर्स, राइट. तो 2 किलोमीटर्स क्या अर्थवॉर्म होगा, बॉय होगा, नेल होगा, साड़ी या डिस्टेंस, तो यही होगा डिस्टेंस. डिस्टेंस फ्रॉम होम टू स्कूल, तो आपको ये 2 किलोमीटर को ये होम के साथ आपको मैच करना है, ई के साथ. नाउ 10 सेंटीमीटर, सो 10 सेंटीमीटर तक का कौन लंबा हो सकता है, दिस अर्थवॉर्म. सो 10 सेंटीमीटर को आपको अर्थवॉर्म के साथ मैच करना है. उसके बाद 1 मीटर, सो ऑब्वियसली हाइट ऑफ अ चाइल्ड, एक चाइल्ड की जो हाइट होगी वो 1 मीटर तक हो सकती है, राइट. उसके बाद 1 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर क्या हो सकता है, विथ ऑफ अ फिंगर नेल. फिंगर नेल की जो विथ है ना वो 1 सेंटीमीटर की हो सकती है, राइट. तो ये मैचिंग भी आपको आपके लिथो में फिनिश कर लेना है. नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. नाउ इन द नेक्स्ट क्वेश्चन one map is given and here some questions are given. So first of all study this map very carefully. आपको क्या करना है, see answer the following questions on the basis of map given below. means ये map आपको दिया हुआ है और उसके रिलेटेड जो ये क्वेश्चन है वो सॉल्व करने हैं. बट देखो आपके लिथो में ये क्वेश्चन है वो 1 2 3 ऐसे स्टैंडिंग लाइन में दिए होंगे, बट हियर दिस आर इन स्लिपिंग लाइन. सो डोंट वरी, आपको तो 1 by 1 उसको सॉल्व ही करना है. अंडरस्टैंड. नाउ सी व्हाट इज दिस, ये क्या है, स्कूल है और ये बॉय का होम है, ये जो यहाँ है. अब ये बॉय को स्कूल जाना है तो यहाँ पे बहुत सारे पाथ दिए हुए हैं, जैसे कि ये पाथ ए है, राइट. फिर ये वाला जो बी लिखा है ना, दैट इज पाथ बी. ये पाथ बी है. फिर यहाँ पे पाथ सी है, राइट. दिस इज पाथ सी एंड दिस इज पाथ डी. ये कौन सा पाथ है, डी. अंडरस्टैंड. और यहाँ पे ई. सो हियर ए बी सी डी ई डिफरेंट टाइप्स ऑफ पाथ, मतलब कि अलग अलग रास्ते दिए हुए हैं. तो ये लड़का है, वो ये जो बॉय है वो कोई भी रास्ते से जा सकता है, राइट. तो हमें उसका लेंथ फाइंड करनी है कि लेंथ ऑफ पाथ ए. पाथ ए की लेंथ क्या हो सकती है, पाथ बी की लेंथ क्या हो सकती है, राइट. तो सबसे पहले लेंथ ऑफ पाथ ए. तो यहाँ पे आप देखो पहले क्या आया, 2 किलोमीटर, मतलब कि 1 2 देन 3 4 5 6 7 8 and 4 8 9 10 11 12. So this is we can say 12 सेंटीमीटर. कितनी लेंथ आएगी इसकी, पाथ ए की 12 सेंटीमीटर. सो यू हैव टू राइट आंसर इन द ब्लैंक, 12 सेंटीमीटर. नाउ लेंथ ऑफ पाथ बी. अब यहाँ पे जो ये पाथ बी है उसकी लेंथ काउंट करते हैं. देखो यहाँ पे 2 सेंटीमीटर. सो 1 2 देन 3 4 5 6 and 7 8. So this is how many सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर. कितना सेंटीमीटर आया, 8. जैसे कि यहाँ पे 1 2
plus 2 4, then plus 1 5, 5 plus 1 6, and 6 plus 2 8. So answer will be 8. Understand? Now number 3, length of path C. Now where is path C? Here. This is path C. So let's count. सबसे पहले 3 centimeter. 3 plus 2 कितना करेंगे? 4 and 5. Now 5 plus 2 will be 7, and 7 plus 2 will be 9. समझ में आ रहा है? मतलब कि देखो 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So this will be 9 centimeter. Length of path C, जो C वाला पाथ है उसकी लेंथ है वो 9 सेंटीमीटर आएगी. अब D पाथ D is this. So 4 plus 4 8. 4 plus 4 8, and 8 plus 2 10. Very easy. So path D is 10 centimeter long. पाथ D है वो कितने सेंटीमीटर लॉन्ग है? 10 सेंटीमीटर. अब पाथ E का टर्न आया, लास्ट वाला ये. देखो सबसे पहले 4, then 3, 4 after 5, 6, 7, फिर 2 ही है, 8, 9, and again 2, 10, 11. So this is 11 centimeter. Understand? And the sixth one, which is the shortest path. अब सबसे शॉर्ट पाथ कौन सा है? आपने देखा सबकी यहाँ पे मेजर की लेंथ is 12, 8, 9, 10, 11. तो सबसे शॉर्टेस्ट पाथ किसका है? देखो 8 है ना, इसका ही सबसे कम आएगा. ये तो 12 है. फिर पाथ सी तो 9 सेंटीमीटर है, ई 11 है, सबसे बिग स्मॉल नंबर तो यही है. तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे? 8 सेंटीमीटर. व्हाट विल यू राइट? 8 सेंटीमीटर. अंडरस्टैंड? उसके बाद विच इज द शॉर्टेस्ट पाथ. कौन सा पार्ट शॉर्ट है? 8 सेंटीमीटर वाला. बट 8 सेंटीमीटर वाला पाथ D है, राइट? दैट इज योर आंसर, पाथ B. And here we have written measure. Now which is the longest path? सबसे लॉन्ग पाथ कौन सा है? मतलब कि सबसे उसमें ज्यादा सेंटीमीटर हुए. देखो ये 10 से बड़ा होता है 11, और 11 से भी बिग होता है ये 12. तो ये जो 12 है वो कौन सा पाथ है? पाथ A. So here you can write path A, and in bracket you can write 12 centimeter. Understand? It is really very easy and you have to count. इसमें आपको कोई अलग से सम करने की जरूरत नहीं है. Only आप ऐसे ही कैलकुलेट कर लो orally and then you can write answers. Now let's see the next question. Now see the next question. In this question, one picture is given, right? Here different things are given. This is mountain, tent, then village, then after here well, this is pond, and this is temple. And here can you see some lines? आप line तो देख ही रहे हो, but something is given. This is 300 मीटर. 300 मीटर का मतलब क्या हुआ? माउंटेन से अगर आप टेंट में जाते हो तो उसका डिस्टेंस है वो 300 मीटर है. उसके बाद आप टेंट और विलेज का डिस्टेंस है वो 400 मीटर है, राइट? फिर आप विलेज से वेल तक जाते हो, विलेज से वेल तो 150 मीटर्स है. फिर आप वेल के पास से अगर पॉन्ड में जाते हो तो यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो 250 मीटर्स. एंड वेल टू टेम्पल, अगर आपको टेम्पल तक जाना है तो 450 मीटर. सो दिस टाइप ऑफ डिस्टेंस इज गिवन, एंड एज पर दिस डिस्टेंस हियर सम क्वेश्चन आंसर्स आर गिवन, राइट? आपके लिथो में भी ये क्वेश्चन आंसर्स है. तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ विलेज फ्रॉम द टेंट. अब टेंट से विलेज का डिस्टेंस आपको फाइंड करना है. देखो ये टेंट है, ये विलेज है, तो टेंट से विलेज का डिस्टेंस है वो कितना है? 400 मीटर, राइट? सो योर आंसर विल बी, व्हाट विल बी योर आंसर? आपका आंसर क्या होगा? 400 मीटर. तो यहाँ पे आप लिखेंगे 400 मीटर. आई बात समझ में? नाउ सेकेंड वन, सी सेकेंड में क्या है? व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ टेम्पल फ्रॉम द विलेज. टेम्पल टू विलेज, अंडरस्टैंड?
विलेज से अगर आप टेम्पल जा रहे हो तो उसका डिस्टेंस कितना होगा? तो देखो टेम्पल तो यहाँ पे है, अब विलेज यहाँ है। अब यहाँ से पहले तो आपको वेल पे आना पड़ेगा, तो वो कितना होगा? 150 होगा। फिर आपको टेम्पल जाना पड़ेगा, तब यहाँ पे कितना होगा? 450। तो हमें क्या करना पड़ेगा? दोनों का ऐसे एडिशन करना पड़ेगा। पहले हमें 150 मीटर्स तक चलना पड़ेगा, फिर 450 मीटर्स तक चलना पड़ेगा। सो 0 + 0 विल बी 0, 5 + 5 10 एंड कैरी ओवर 1, 4, 5 एंड 6। कितना डिस्टेंस आया विलेज टू टेम्पल जाने का? 600 meters, right? So here your answer will be 600 meter. Understand? Here you can write in second blank. Second blank में आप क्या लिखोगे? 600 meter. आई बात समझ में? Now the third one. What is the distance of well from the mountain? Now let's find out where is mountain and where is well. तो well is here. well तो यहाँ पे है and mountain यहाँ पे है, मतलब कि well और mountain में बहुत बड़ा डिफरेंस है। पहले टेंट आएगा, फिर विलेज आएगा और फिर well आएगा। तो पहले हम माउंटेन से टेंट आते हैं, तब कितने मीटर्स होता है? 300 मीटर्स, राइट। फिर उसके बाद टेंट से विलेज का कितना होता है? 400, राइट। एंड विलेज से वेल का 150। आई बात समझ में? इस तीनों का एडिशन तो क्या होगा? ये होगा 0, 0 + 0 + 5 विल बी 5 एंड 4, 5, 6, 7 एंड 8, 850 मीटर्स होगा। कितना होगा? 850। मतलब कि माउंटेन से हम ये भी रोड पे चलेंगे, 400 मीटर भी चलेंगे, 150 भी चलेंगे, उसके बाद यहाँ पे वेल है। सो हियर योर आंसर इज 850 मीटर इन द थर्ड ब्लैंक। थर्ड ब्लैंक पे आप क्या लिखोगे? 850 मीटर। अंडरस्टैंड? आपको यहाँ पे फोर्थ भी क्वेश्चन दिया हुआ है। फोर्थ में क्या है? व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ टेम्पल फ्रॉम द पॉन्ड? अब यहाँ पे आपको टेम्पल और पॉन्ड का डिस्टेंस फाइंड करना है। देखो टेम्पल यहाँ पे है एंड पॉन्ड यहाँ पे है, तो टेम्पल से पहले आप वेल में जाओगे तो उसका डिस्टेंस कितना होगा? 450। फिर 450 का डिस्टेंस कवर किया, फिर 250 का डिस्टेंस कवर करोगे तभी पॉइंट पे आओगे। तो वापस हम यहाँ पे 250 को ऐड कर देंगे। समझ में आ रहा है ना? नाउ सी 0 + 0 is 0, 5 + 5 will be 10. So 0 and carry over 1. Understand? 4 + 1 5 and 5 + 2 7. So what is the distance from temple to pond? अगर हम pond to temple बोले या temple to pond बोले, both are same, मतलब कि दोनों का डिस्टेंस तो सेम ही होगा। आप अगर टेम्पल से पॉन्ड में जाते हो तब भी 700, और पॉन्ड टू टेम्पल इफ यू आर गोइंग देन ऑल्सो 700, राइट। अगर आप पॉन्ड से टेम्पल जा रहे हो तो उसका जो डिस्टेंस है वो बढ़ नहीं जाएगा, सेम ही रहेगा। सो इन द नेक्स्ट ब्लैंक मीन्स इन ब्लैंक नंबर 4, ब्लैंक नंबर 4 पे आप क्या आंसर लिखोगे? हमने क्या एडिशन किया? 700 मीटर। अंडरस्टैंड? नाउ सी the fifth one. What is the distance of pond from the tent? Now tent and pond, let's find out where is tent and where is pond in the picture. See here, here tent, then here is the road. You will go like this and again if you will take turn then here you can reach. So let's find out tent से अगर हमको pond में जाना है तो कौन कौन रास्ते में आएगा? टेंट से पहले हमको विलेज जाना पड़ेगा तो 400 आएगा। उसके बाद विलेज से हम वेल के पास जाएंगे तब क्या आएगा? 150 आएगा। एंड वेल से अगर हम पॉन्ड पे जाएंगे तब क्या आएगा? 250। अंडरस्टैंड? एंड नाउ लेट्स काउंट। 0 + 0 will be 0 and 5 + 5 10. 0 carry over 1. Now see 4 + 1 5, 6. 6 + 2 8. So the distance of pond from tent, that will be 800 meter. तो आपको फिफ्थ ब्लैंक है उसमें क्या लिखना है? What will be your answer? फिफ्थ ब्लैंक में क्या आएगा यहाँ पे? 800 मीटर। आई बात समझ में? 800 मीटर हमने अभी उसका कैलकुलेशन भी किया।
नाउ हियर यू हैव टू अंडरस्टैंड, आपको ये जो क्वेश्चन है ना वो अच्छी तरीके से समझना है. सी विच डिस्टेंस इज मोर. अब यहाँ पे आपको दो डिस्टेंस फाइंड करने पड़ेंगे. उसके बाद दोनों डिस्टेंस फाइंड करने के बाद आपको सोचना है कि कौन कितना ज्यादा है. राइट, डिस्टेंस ऑफ पॉन्ड टू टेंट. अब हमने यहाँ पे देखो पॉन्ड टू टेंट तो कर ही लिया है. पॉन्ड टू टेंट का कितना हो गया 800. तो पॉन्ड टू टेंट का 800 है. एंड और हम दूसरा फाइंड करेंगे किसका, डिस्टेंस ऑफ टेम्पल फ्रॉम टेंट. अभी हमने टेम्पल से टेंट का डिस्टेंस फाइंड नहीं किया. पॉन्ड टू टेंट का हमको पता था, वो हमने यहाँ पे लिख लिया. देखो पॉन्ड फ्रॉम दी टेंट वो ऑलरेडी हमने यहाँ पे फाइंड किया, इसलिए हमने यहाँ पे लिखा. अब दूसरा टेम्पल एंड टेंट. चलिए देखते हैं टेम्पल और टेंट. तो टेम्पल और टेंट का तो बहुत ज्यादा डिस्टेंस लग रहा है. यहाँ पे टेंट है और यहाँ पे टेम्पल है. अब देखते हैं यहाँ पे कितना आएगा. देखो पहले आएगा 400 क्योंकि हम यहाँ से विलेज जाएंगे, विलेज से वेल जाएंगे तो वो हो जाएगा 150. फिर यहाँ से हम अगर टेम्पल गए तो कितना हो जाएगा 450. आई बात समझ में. अब हम यहाँ पे उसका एडिशन करेंगे. सो 0 + 0 0, दैट विल बी 0 and 5 + 5 will be 10. So 0 and carry over 1. Now see 4 + 4 8, 9 and 10. तो वो हो गया 1000. आई बात समझ में. क्वेश्चन में कौन सा था, एक तो डिस्टेंस था कि डिस्टेंस ऑफ पॉन्ड फ्रॉम द टेंट. जैसे कि ये पॉन्ड और टेंट का हमने यहाँ पे क्या कितना फाइंड किया था 800. और टेंट से टेम्पल का उसका हम इस साइड जाएंगे तो उसका आया 1000. मतलब एक 1000 है, एक 800 है. राइट. सो विच डिस्टेंस इज मोर, कौन सा डिस्टेंस मोर है फ्रॉम टेंट टू टेम्पल. देखो यही वाला मोर है. और कितना, तो इन दोनों का अगर हम सब्ट्रैक्शन करें 1000 में से 8, मतलब कि 10 में से 8 गए तो कितने आएंगे 2. और 1000 में से 800 गए तो 200. राइट. तो कौन सा वाला जो डिस्टेंस है वो बिग है, डिस्टेंस फ्रॉम टेम्पल, डिस्टेंस फ्रॉम टेंट टू टेम्पल. राइट. तो हम यहाँ पे इतना ही लिखेंगे, टेंट टू टेम्पल. राइट, बिकॉज यहाँ पे जगह ही नहीं है इसीलिए. डिस्टेंस ऑफ पॉन्ड फ्रॉम टेंट और डिस्टेंस ऑफ टेम्पल फ्रॉम टेंट. तो हमने यही लिखा टेंट टू टेम्पल. अगर आप यहाँ पे टेम्पल टू टेंट लिखोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है. और हाउ मच मोर, कितना ज्यादा हुआ था 200 मीटर. आई बात समझ में. क्योंकि एक 1000 आया, एक 800 आया. दोनों को अगर हम सब्ट्रैक्शन करेंगे तो क्या आएगा 200. सो दिस इज क्लियर. आपको ये समझ में आ गया. अब यहाँ पे देखो विच डिस्टेंस इज लेस. अब यहाँ पर भी हमें दो डिस्टेंस फाइंड करने हैं. राइट. तो पहले तो यहाँ पे कौन सा दिया है, पॉन्ड फ्रॉम दी वेल. वेल का और पॉन्ड का डिस्टेंस, और डिस्टेंस ऑफ टेम्पल फ्रॉम वेल. टेम्पल और वेल और पॉन्ड और वेल. आइए देखते हैं. देखो ये तो बहुत ही इजी है. पॉन्ड और वेल एंड टेम्पल टू वेल. अब दोनों में से कौन लेस है, 450 इज लेस और 250 इज लेस. ये 250 ही लेस है. राइट. अब इन दोनों में से कितना लेस है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसका सब्ट्रैक्शन करेंगे. देखो ये ओनली रफ वर्क है. राइट. 450 - 250. सो 0 0 and 4 - 2 will be 2. यहाँ पर भी आया 200. बट विच इज लेस, पॉन्ड टू वेल. यू कैन ऑल्सो राइट दैट, पॉन्ड टू वेल. राइट. हियर pond to well you can write. And how much less, same 200 meter less. सेम ही आया आपको. इसका भी सब्ट्रैक्शन क्या आया, 200 मीटर ही आया. नाउ द नेक्स्ट वन. अब यहाँ पे है विच डिस्टेंस इज मोर. यहाँ पे भी आपको यही फाइंड करना है कि किसका डिस्टेंस ज्यादा है, माउंटेन फ्रॉम विलेज एंड टेम्पल फ्रॉम विलेज. माउंटेन से विलेज जाए वो या टेम्पल से विलेज जाए वो. लेट्स फाइंड आउट. सी ओवर हियर, माउंटेन टू विलेज.
तो माउंटेन से पहले हम टेंट पे जाएंगे तो कितना आएगा 300, फिर टेंट से हम विलेज में जाएंगे तभी आएगा 400। तो माउंटेन से विलेज का आएगा 700 डिस्टेंस आएगा। आई बात समझ में? ये माउंटेन और विलेज का डिस्टेंस है वो 700 आया। अब हम फाइंड करेंगे टेम्पल से विलेज का। तो टेम्पल से पहले हम यहाँ तक आएंगे तो कितना आएगा 450, राइट। और वेल से हम यहाँ पे विलेज में जाएंगे तो उसका डिस्टेंस होगा 150। अब यहाँ पे हम इसका एडिशन ही करेंगे बिकॉज हम यहाँ पे टोटल फाइंड कर रहे हैं कि टोटल डिस्टेंस कितना है। सो 0 + 0 इज 0, 5 + 5 10, दैट्स व्हाई 0 एंड कैरी ओवर 1, 4 + 1 5 एंड 5 + 1 6। तो देखो यहाँ पे आपको मोर 8 का जो क्वेश्चन था उसमें ही यही था ना, विच डिस्टेंस इज मोर, कौन सा डिस्टेंस मोर है, माउंटेन टू विलेज का या माउंटेन टू टेम्पल का। तो हमने यहाँ पे फाइंड किया ना कि माउंटेन टू दी विलेज का डिस्टेंस बिग है, राइट। और कितना, अच्छा ये 700 है, ये 600 है, तो कितना है, अगर दोनों में हम सब्ट्रैक्शन करें तो कितना आपको डिस्टेंस दिख रहा है 100 का। ये है मोर, बट कितने 100 मीटर मोर, कौन सा, माउंटेन टू विलेज, राइट। आप लिख सकते हो यहाँ पे माउंटेन टू विलेज एंड 100 मीटर मोर। So here you can write like this, mountain to village and how much more, 100 meters more, 100 मीटर ही ज्यादा हुआ, right। Now next, अब नेक्स्ट में आपको क्या फाइंड करना है, लेस। अब कौन लेस है, हमको यहाँ पर भी 2 डिस्टेंस फाइंड करने पड़ेंगे और दोनों में से किसका डिस्टेंस है वो कम है वो हम लिखेंगे, राइट। नाउ सी डिस्टेंस ऑफ माउंटेन फ्रॉम द टेंट, मतलब कि आपको माउंटेन और टेंट का डिस्टेंस फाइंड करना है, और विलेज फ्रॉम टेंट, माउंटेन टू टेंट एंड विलेज टू टेंट। नाउ लेट्स सी, अब यहाँ पे देखो माउंटेन टू टेंट का डिस्टेंस है 300 मीटर्स एंड विलेज टू टेंट का डिस्टेंस भी है 400 मीटर्स। वो ऑलरेडी हमको दिया हुआ है तो कैलकुलेशन करने की तो कोई जरूरत ही नहीं पड़ती। बट विच इज लेस, आपको दोनों में से कौन लेस लग रहा है, माउंटेन टू टेंट, राइट। एंड हाउ मच, कितना, अगर आप इन दोनों का सब्ट्रैक्शन करो, देखो 100 का ही डिफरेंस आ रहा है ना, 400 - 300, और यू कैन डू 4 - 3 विल बी 1। सो विच डिस्टेंस इज लेस, माउंटेन टू टेंट, एंड हाउ मच, कितना लेस है, 100। तो आप यहाँ पे आपके लिथो में ऐसा लिख सकते हो, माउंटेन टू टेंट, राइट, एंड हियर 100 मीटर कितना है, तो हमको सब्ट्रैक्शन से पता चल गया कि वो 100 मीटर है। नाउ नेक्स्ट, विच डिस्टेंस इज मोर, कौन सा डिस्टेंस मोर है। सेम हियर ऑल्सो यू हैव टू फाइंड आउट 2 डिस्टेंस, अलग अलग 2 डिस्टेंस आपको फाइंड करने हैं, फिर आपको कंपेयर करना है और फिर उन दोनों का सब्ट्रैक्शन करके पता करना है कि कितना है। अब क्या करना है, देखो वेल टू माउंटेन, वेल से माउंटेन तक जाना है और टेम्पल से टेंट तक जाना है। सो आर यू रेडी, वेल और माउंटेन एंड टेम्पल से टेंट तक। नाउ सी आपके क्वेश्चन में लिखा है ना, वेल से कहाँ जाना है, माउंटेन, तो वेल से विलेज जाना पड़ेगा, तब डिस्टेंस आएगा 150। फिर विलेज से टेंट का 400 मीटर है, वो भी आपको कवर करना पड़ेगा। उसके बाद टेंट से आप अगर माउंटेन जा रहे हो तो उसका भी आएगा प्लस 300। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे ऑल जीरोस, 0 + 5 5 एंड 4 5 6 7 8, इसका आएगा 850। किसका, पहले ये 150, फिर 400 और फिर 300। उसके बाद आपको सेकेंड है डिस्टेंस ऑफ टेम्पल, डिस्टेंस ऑफ टेम्पल फ्रॉम दी टेंट, मतलब कि टेंट से अगर आप टेम्पल में जा रहे हो तब कितना, देखो पहले आप टेंट से विलेज गए तब भी आएगा 400, फिर आप विलेज से वेल पे गए तब भी आएगा 150, उसके बाद आप टेम्पल जा रहे हो तो आएगा 450। यहाँ पर भी 0, now 5 + 5 10, 0 and carry over 1, and here see 4 + 4 8,
9 and 10, तो यहाँ पे आ जाएगा 1000। मीन्स कौन सा मोर है, यही वाला, टेंट टू टेम्पल, राइट। तो हम यहाँ पे आंसर तो लिख सकते हैं, क्या आंसर लिखेंगे लास्ट में, टेंट टू टेम्पल। आई बात समझ में, टेंट से टेम्पल का डिस्टेंस है वो मोर है। अब कितना मोर है उसके लिए हमें इन दोनों का सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा। तो आइए इसका सब्ट्रैक्शन हम इसी टेक्स्ट बुक में कर लेते हैं। यहाँ पे 1000 है, 1000 में से कितना माइनस करेंगे हम, 850। अब देखो 0 माइनस 0 विल बी 0, 0 माइनस 5 ये तो पॉसिबल ही नहीं है, तो 0 कट 10। यहाँ पे भी और 0 है तो कट तो नहीं कर सकते, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 9, और ये कट हो जाएगा तो 0 आ जाएगा। अब यहाँ पे 10 माइनस 5 विल बी 5, 9 माइनस 8 विल बी 1, तो इसका आंसर क्या आएगा 150। तो कितना मोर है, टेंट टू टेम्पल का डिस्टेंस मोर है, बट कितना मोर है 150 मीटर्स मोर है। आई बात समझ में। सो दिस वे यू हैव टू राइट ऑल दिस ब्लैंक्स। अगर आपके ब्लैंक में जगह नहीं है तो आप इसके नीचे भी लिख सकते हो, बट यू हैव टू सॉल्व लाइक दिस। आपको ऐसे इसको सॉल्व करनी है, अंडरस्टैंड। नाउ सी ओवर हियर, MCQs आर ऑल्सो गिवन इन योर लिथो। आपके लिथो में MCQs भी दिए हैं। तो फर्स्ट वन क्या है, टू कन्वर्ट मीटर इनटू सेंटीमीटर। अब मीटर है उसमें कितने सेंटीमीटर्स है उसको जानने के लिए हम किससे मल्टीप्लाई करते हैं। अभी हम सबको पता है कि 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, राइट। 1 मीटर है तो 100 सेंटीमीटर हो। अगर 2 मीटर है तो कितने होंगे 200। अगर 3 मीटर होंगे तो कितने होंगे 300। तो 2 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से करेंगे। 100 2 ही 200 होगा ना, तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे, कौन से, 100 से, राइट। टू कन्वर्ट मीटर इनटू सेंटीमीटर, मल्टीप्लाई मीटर बाय विच नंबर, मीटर को हम कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। सो 100 इज B, राइट। So here you can write B. Now next, to convert kilometer into meter. किलोमीटर टू मीटर में अगर आप कन्वर्ट करते हो, then put dash 0 after number of kilometer. मीन्स अगर आपको किलोमीटर दिया हुआ है और आपको मीटर फाइंड करना है, तो आप मीटर में कितने 0 लगाओ, तो आप किलोमीटर में कितने 0 लगा दोगे। जैसे कि यहाँ पे ऐसा दिया है 1 किलोमीटर, राइट। अब 1 किलोमीटर में पता है आपको कितने मीटर्स होते हैं, 1000 मीटर। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर्स होते हैं। तो सेम वे 2 किलोमीटर में कितने मीटर होंगे, 2000 मीटर, है ना। अब 3 किलोमीटर में कितने मीटर्स होंगे, 3000 मीटर। तो यहाँ पे क्वेश्चन वही है, टू कन्वर्ट किलोमीटर इनटू मीटर, पुट डैश जीरोस आफ्टर द नंबर ऑफ किलोमीटर। अब 8 है, 8 किलोमीटर में कितने मीटर्स है, उसके लिए मैं कितने 0 लगाऊंगी, 1 2 एंड 3 जीरोस, 3 जीरोस लगाऊंगी तो ही मुझे पता चलेगा कि ये कितने मीटर्स है। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन राइट है, सी ऑप्शन, राइट। ऑप्शन सी इज राइट। नाउ सी ओवर हियर, किलोमीटर, मीटर एंड सेंटीमीटर आर यूनिट्स ऑफ। अच्छा, किलोमीटर, मीटर और सेंटीमीटर हम क्या किससे यूज करते हैं, किस लिए यूज करते हैं, क्या मेजर करते हैं हम, लेंथ, राइट। वो सबकी लेंथ मेजर करने में यूज होता है। जैसे कि ये कोई पेंसिल है तो वो कितनी लंबी है, तो हम उसकी लेंथ मेजर करेंगे। तो यहाँ पे क्या आएगा, डी, ऑप्शन डी इज राइट, अंडरस्टैंड। नाउ सी हियर, 1 मीटर प्लस 1 किलोमीटर, तो कितने मीटर होंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये तो मीटर है ही, तो इसको तो हमको कोई जरूरत ही नहीं है। अब 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर है तो कितने मीटर्स होंगे, 1000 मीटर होंगे। समझ में आया। तो ये 1000 प्लस 1, तो 1000 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 1001। सो हियर ऑप्शन डी इज राइट। समझ रहे हो ना कि 1 मीटर प्लस 1 किलोमीटर, और इन दोनों को मिला के कितने मीटर होंगे। अब ये तो मीटर ही है, राइट। 1 किलोमीटर में कितने मीटर्स होंगे, 1000। तो 1000 प्लस 1 दैट विल बी 1001। अब यहाँ पे देखो, ये है
500 मीटर एंड 74 सेंटीमीटर। तो इसको अगर आपको दोनों को कंबाइन करके सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो आप देखो 5 मीटर है तो 500 सेंटीमीटर आएगा ना, जैसे तो 500 सेंटीमीटर प्लस 74 सेंटीमीटर, इन दोनों का एडिशन करेंगे तो क्या आएगा 574 सेंटीमीटर। आई बात समझ में? तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन आएगा? ऑप्शन बी, यहाँ पे बी आएगा। उसके बाद फाइंड द ऑड वन, मतलब कि यहाँ पे जो अलग है ना वो आपको फाइंड करना है। क्या अलग है? डिस्टेंस फ्रॉम स्कूल टू प्ले ग्राउंड, लेंथ ऑफ अ पेंसिल बॉक्स, डेप्थ ऑफ वेल एंड हाइट ऑफ बिल्डिंग। यहाँ पे कौन अलग है वो आपको फाइंड करना है। अब इसको जानने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? पहले हम इसके यूनिट्स लिख दे, राइट। जैसे कि डिस्टेंस फ्रॉम स्कूल टू प्ले ग्राउंड, अब स्कूल का ही प्ले ग्राउंड है और क्लासरूम का डिस्टेंस है, उसको हम मीटर में मेजर करेंगे, राइट। डेप्थ ऑफ अ वेल, अब एक कुआं कितना गहरा है उसको जानने के लिए भी हम मीटर यूज करेंगे। फिर हाइट ऑफ अ बिल्डिंग, बिल्डिंग की कितनी हाइट है उसको जानने के लिए भी हम मीटर का यूज करेंगे। बट ये लेंथ ऑफ पेंसिल बॉक्स, ये लेंथ ऑफ पेंसिल बॉक्स है वो मीटर में नहीं होता है, वो सेंटीमीटर में होता है। तो सबसे अलग कौन है? ये ऑप्शन सी। सो दिस इज द आंसर। So today we have completed our chapter number 4 in both litho. It is already completed today and textbook में तो हमने कब का कंप्लीट कर लिया है, राइट। तो आपको ये सारी एक्सरसाइज आपके लिथो में फिनिश कर लेनी है, राइट। थैंक यू।